Good evening, friends. I welcome you all on behalf of the Unique Academy in today's webinar. As you all are aware about the fact that we have started with the series of webinar aiming at a new batch focusing particularly on UPSC Prelims 2021. So dear friends, before we start with today's session, I would like to introduce a batch once again to you all, those who are new to this particular exercise. Friends, this is in brief an introduction for the batch. So friends, we are going to launch a new batch specifically for prelims. As you can see on your screen, the batch is titled or named as Prelims Special Program, wherein the program will run for 100 days. And each day there will be two sessions, two lectures, each carrying 2 hours. So basically it is 100 days, 200 lectures and 400 hours of teaching. It's not just teaching the basic concepts, but we will also try and see to it, or we have actually designed the course in a way that it addresses the needs and the demands of students, those who have been appearing for UPSC prelims for last 2-3 years, but have not been able to clear the same. So the purpose of this batch is not just to address the new students, those who will be most probably appearing this year's attempt, but also to groom and polish the skills of the old students, those who have been preparing for 1 or 2 years, and the batch precisely aims at them. As you can see on your screen, batch will start on 4th of January 2021, and timing will be in the evening 4 p.m. to 8 p.m. That is 2 sessions per day. Here are some of the you can say features of the course or features of the batch. As you can see, we are going to have expert faculties, and expert faculties will be dealing with individual subjects and strategies for that particular subject, or strategies for that particular subjects, again from prelims perspective. There will be intensive teaching. As you can very easily calculate the timing, 400 hours is in fact a big amount of time you are going to engage with teachers here, and there will be intensive teaching. We will be also ensuring the fact that all the hidden aspects of the syllabus, which is mentioned by UPSC, particularly, or designed by UPSC, particularly for prelims, will be covered. So there will be extensive coverage of syllabus, particularly from prelims point of view. Now, when it comes to prelims, as you all know, or as you all are aware about the fact that prelims is objective, and so you have to have a very good hand on objective questions. And to ensure that, we have also planned the MCQs, or you can say practice sessions, and there will be almost in every lecture you will be coming across bunch of MCQs as a matter of practice, right? And every teacher will be sharing those MCQs with you. Apart from that, as there is a huge group of students, or huge chunk of students, those who actually find it little difficult to crack the prelims because of several issues, so there will be personal mentoring as well, and every individual student will be taken care of, and his queries and his difficulties will also be addressed personally. Now, when it comes to prelims, one important factor is CSAT, which some of you, or probably most of you, take for granted. But then it has become one of the most important factors in deciding the results, particularly for UPSC prelims in recent years. And so we have planned sufficient amount of CSAT sessions in this due course of time of 100 days. And we will be also ensuring that sufficient amount of practice sessions are also being taken care of. Apart from this, we are also going to launch a separate test series, again only for prelims, and that test series is available free of cost for this batch students. And so there will be an all India ranking by which you will be able to locate yourself in the competition. You will be able to assess and judge yourself in the competition, and you can very easily make a plan accordingly. There will be also topic-wise notes being provided in the course of time. So, dear friends, don't miss an opportunity, as this seems to be one of the very good initiative taken by the academy, the Unique Academy, and we will be helping you out in getting through the prelims 2021. So with this batch, with keeping this batch in mind, we have been running a series of webinars from Monday onwards. Today's webinar is third webinar in the series.
Today we have Honorable Bhushan Deshmukh sir speaking on a topic named as or titled as Prelims Mantra, UPSC Prelims Mantra. Right, he will be giving you some insights into how one needs to approach and how one needs to deal with UPSC prelims. And now, with that note, I would like to hand over the session to Bhushan Deshmukh sir, and I will stop here. Bhushan sir, you can continue now. For today's discussion on the prelim mantra. So, though this is a tantra mantra banned by law India now, Jadukona Virudhi Kaida, you're not exactly like in that sense when we talk about a mantra, but then some, what to say, some rules when you go ahead in such type of exam like prelim. So, as we're knowing, among the 3 steps, the most dicey step is a prelim only. This year is a good example. Many students who are the post holder this year have fallen in the prelim. But that's makes like any person who want to take a challenge. It's the best challenge indeed. So what I do will not do it too much on like man ki baat. Let's talk have a calm ki baat. We have some like direct discussion on what I thought are important points. So on my own, I have built some points. I have not like taken from here and there. I thought no, for so many years experience, what people discuss the issues they face, and what I thought as like could be the solution to some of the problems they had. So what we'll have, we'll first have discussion on that, and then we can have question answer type or like your queries will also be sorted out. Max 1 hour, the whole thing will go. I don't think beyond it. It's your capacity and other is required so much things also. Like if you're not able to clear in 1 hour, then as it is you're not able to clear anything. One can say like that. So what I have done, I have created one PPT PowerPoint presentation to make you understand some of the nitty-gritties of the prelim approach like that. So let's try out that. So prelim mantra, as we kept the name. So technique and content both matter in the exam like UPSC prelim. 4 options are there and is not clear, and then clear. So you should be able to see the which exactly is option and able to pass it, mark it right, and then you clear. So technique and content, 50% technique, 50% content. First come the content part. One has to study, one has to make notes, one has to revise, one has to consolidate, update, discuss, point it out, etc., etc. And also technique part, solving it in time, understanding which could be the like correct answer, which may not be. This technique part is also a crucial role in the exam. So you can call content part as a mantra and technique part as a tantra. So tantra and mantra both are crucial for clearing the prelim. One can say overall. So June 27, 2021, that's a date of like a D-Day as the Second World War. It was there 179 days to go, and so many nights also among 3 steps to success. Prelim is the most dicey, as I said. Prelim requires strategy as well as a focus. So without strategy and focus, it can't be tackled. So what one has to like in the beginning only be clear that there has to be a switch on, switch off technique idea, switch on, switch off technique. So what is this switch on, switch off technique idea? That switch off for means after some time and switching on to the prelim technique. One has to now get rid of the main studies and shift to the prelim. By now you must be busy in the mains and in the last few days of mains, I'm sure. So cutoff date for mains, you have to decide a cutoff date for new candidates who are like first time like pushing exam, 15 Jan max. They should better shift after that. Completely to prelim, switch off the mains, that is get out of mains completely and switch on to the prelim approach. Think of only prelim after that. For those who are already in the process for last before that year, they can start from first paper, but not beyond that. Going beyond cutoff date and not able to switch off can cost a year. अगर आपने time पे, I had experience of students who up to March, April keep doing mains और कहते हैं कि नहीं वो prelim निकल जाएगी, comfortable है नहीं, but then nothing is comfortable. Prelim requires its own time, and better you should give the sufficient time to it. और extreme case हम क्या कह सकते हैं? You clear the prelim, but since you're not prepared for the mains, you flunk the mains. Even that will do. But opposite हो रहा है कि you are like saying to everyone that you are so much prepared for mains that you know opportunity
यू विल डायरेक्टली लॉन्च योरसेल्फ इनटू आईएएस। बस आपको मेंस देने की कमी है, पर आपकी प्रीलिम ही नहीं निकल रही है, सो दैट्स अ ट्रेजेडी देन। Who will believe in you that you are like prepared for means? If prelim clear होता है, that gives the confidence, and confidence itself give the tempo which may make the means clear. तो उसके बारे में एक लिमिट के आगे सोचने की जरूरत नहीं है, means का क्या होगा। एक कट ऑफ डेट रखिए, and after that date cut off from the means, switch off from the means and switch on to the prelim. अभी जो CSAT है ये थोड़ा ट्रिकी हो रहा है ना, this year especially it has been catastrophe type or disaster type for many students, that on different groups when the discussion started after the prelim exam, everyone expected that more and more discussion happening about GS paper 1 which is scoring, uske marks pakde jate hai. But soon what happened, students came to CSAT and discussion happened on CSAT only. Why? Because so much difficult students have gone through it, and really this year this happened that many students have cleared the GS score. GS का उनका score आ रहा है पेपर 1 का, तो पेपर 2 के CSAT के जो 1/3 स्कोर है वो नहीं आ रहे हैं. So that is like it's like stubbing in the back somewhere say of UPSC, or like UPSC has their own guerrilla fighting methods, like so one should be prepared for this part. So dedicating time is required for this part, like so those who are good at it. Some people may have background, they are good at this English comprehension, quantitative aptitude, tables उनका अच्छा होता है, तो yes they can give last 2 months 2 hours daily, उनके लिए उतना काफी होगा. But those are medium at it, last 3 months 2 hours daily is required, like 2 घंटा डेली. जैसे रियाज करते हैं क्लासिकल सिंगर, रोज रियाज करते हैं बिना थके हुए, बिना बोर हुए हुए, तो ऐसे करना पड़ता है ना. और दोज हु आर लो एट इट, जिनका अच्छा नहीं है, इतना खासा नहीं है, अच्छा खासा, एंड दे हैड लाइक लो कॉन्फिडेंस इनटू इट, दे हैड टू गिव फुल 5 months 2 hours डेली करना पड़ेगा ना. अभी आप गुड में है, मीडियम है या लो उसमें है, आप खुद की जजमेंट लीजिए, टेक योर ओन जजमेंट, दैट मच यू कैन डू श्योरली, एंड देन अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल ऑन द CSAT प्रिपरेशन. स्कोर शुड नॉट बी ऑन द बॉर्डर. एक बहुत डेंजरस स्ट्रेटेजी क्या होता है स्टूडेंट्स के आजकल, कि बस 33% निकालने हैं ना, तो बस एक उसके आसपास है ना 68 67 तक मिल गए है ना, तो इतना काफी है. तो नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू. लाइक it should be 10% up. It should be 10% up, because those questions we think that they are right, they may actually turn out to be wrong. हमारे तरफ से है, तो don't keep it on border and keep it slightly higher. Beyond limit, we can't predict the pattern of CSAT. Last year का पेपर देख के पता चल गया है कि उसका भी कोई पैटर्न नहीं है, जैसे GS पेपर 1 का भी नहीं है, तो CSAT का भी कोई पैटर्न नहीं है. So better practice multiple types of sums. इस तरह के ही सम आते हैं तो वही करेंगे. ये जो हमारा रेगुलर आइडिया होता है बाकी के एग्जाम्स में, that is not applicable in the UPSC. In UPSC, U itself is for unpredictable. So it's unpredictable Public Service Commission. So practice multiple types of sums. No tables. जैसे बच्चों को याद होते हैं tables, वैसे आपको याद करने पड़ेंगे. Formulas should be known, how to solve the particular type of questions. Tricks has to be understood, and most importantly, make notes of them. Some students think that CSAT के क्या notes करने हैं, उसमें क्या notes होता है, तो सब practice ही है. तो yes, उसके भी notes बनाने पड़ते हैं कि उसमें से क्या tricks है, what are the like easy methods of solving the questions, how to save the time and come at a correct. ये सब भी करना पड़ता है. ज्यादा notes नहीं बनेंगे, hardly 10-15 पेजेस बन जाएंगे तो भी काफी है. But then you have to make it on your own. Like the golden principle is fail in GS1 but not in the GS2. वर्स्ट कम वर्स्ट GS1 में फेल होइए और GS2 में मत होइए. अगर CSAT में फेल होते हो तो उसको बहुत बुरा लगता है. दैट इज वेरी हार्ड बर्निंग देन इवन फेलिंग इन द GS1. ये GS1 कैसे टैकल करना है, तो 2 broad strategies could be discussed. like अभी ऐसा है कि you can see that around 50 questions must come correct from 9 components. approximately 9 components से 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 50 क्वेश्चंस करेक्ट आने चाहिए अप्रोक्सीमेटली. से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड जनरल नॉलेज. अभी हर एक के ऊपर कम ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर अप्रोक्सीमेटली 9 कंपोनेंट्स है. तो एक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि फोकस ऑन एनी 5 कंपोनेंट्स, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आता है हर एक के ऊपर, 10 15 20 तक ऊपर नीचे होता है, पर अप्रोक्सीमेटली 10 तो आता है. तो फोकस ऑन एनी 5 कोर कंपोनेंट्स, डू देम टू द लेवल ऑफ परफेक्शन. वो एकदम परफेक्शन तक लेके जाओ, उसमें पूरा फोकस करो, एंड नियरली ओमिट अदर्स, और बाकी सबको ओमिट कर दो.
ये एक स्ट्रेटेजी है। और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, डू ऑल ऑन एवरेज लेवल टू गेट ऑप्टिमम लेवल, लाइक कि सबको थोड़ा थोड़ा करो कि जिसमें जो इजी क्वेश्चंस आएंगे एटलीस्ट दोज यू शुड एबल टू टैकल, लाइक। तो अभी ये दोनों स्ट्रेटेजी है, उनकी प्रोज एंड कॉन्स है। ये जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, फोकस ऑन 5 कंपोनेंट्स व्हिच आर कोर, ऊपर से तो अच्छी है ऑफ कोर्स, एंड दिस मेक यू द सक्सेस सम टाइम, बट इट्स मोर लाइक हैप्पी गो लकी टाइप फार्मूला कि किया वही आगे और क्लियर हो गया, नहीं बाकी ये किए ही नहीं दे रहे, छूट गए फिर भी हो जाता है। और यूपीएससी का मेन प्रॉब्लम क्या है कि कौन से कंपोनेंट पे कितने क्वेश्चन आएंगे उसका पैटर्न इनका फिक्स नहीं है। कि हिस्ट्री पे क्वेश्चन आएंगे फिक्स है, साइंस पे क्वेश्चन आएंगे फिक्स है, ज्योग्राफी पे आएंगे फिक्स है, पॉलिटी पे आएंगे वो भी फिक्स है, क्वेश्चन आएंगे ये बात फिक्स है। और कितने आएंगे, 10 आएंगे या 15 आएंगे या 20 आएंगे या 25 भी आ जाएंगे, उसका कोई ऐसे फिक्स लॉजिक नहीं है इनका। तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी कभी कभी प्रॉब्लम में आ सकती है ना, कि व्हेन यू आर नॉट लाइक यू आर ओमिटिंग समथिंग एंड दैट इज कमिंग मोर, देन इट्स लाइक अ डिजास्टर, लाइक। तो इस तरह से दोनों इसमें है, यानी कि कम एफर्ट्स में यू कैन क्लियर, बट देन इट कुड बी रिस्की आइडिया। सेकंड जो है, डू ऑल द एवरेज लेवल, सबको एवरेज करो। तो उसमें भी मेरे प्रो क्या है कि यार यस, सबके इजी क्वेश्चन होके ओवरऑल स्कोर हो सकता है। कौन क्या है कि कभी कभी जनरल स्टडीज होती है इस तरह की जो क्वांटिटेटिव नहीं होती, दैट मे नॉट गिव द राइट आंसर्स, उससे बहुत राइट आंसर्स नहीं आते। और बहुत बार तो यूपीएससी आजकल यानी जनरल क्वेश्चंस कम पूछती है, कि जो इजी होते हैं रियली, पूछते तो डायरेक्ट है, थोड़ा यही पूछती है, डिफिकल्टी होते हैं, नॉट सो मच लाइक जैसे कुछ कुछ बहुत जनरली करके वो नहीं सॉल्व होता है। तो ये भी इशू है। तो अभी व्हाट आई थॉट दैट देयर शुड बी स्ट्रेटजी थर्ड, कि तीसरे में क्या करना चाहिए कि वन हैज टू डू द एडिक्वेट मिक्सचर ऑफ बोथ द स्ट्रेटजीज। अभी मिक्सचर क्या है, तो जो आपके 5 मेन कंपोनेंट्स आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये हमारे अच्छे हैं और अच्छे करेंगे, तो यस फोकस ऑन दैट, वो आप कीजिए ही है नहीं, और अच्छे ही कीजिए। और दूसरी तरफ बाकी की जो छोड़ देने की बात है वो थोड़ा रिस्की है। छोड़ देंगे तो उसमें जो इजी क्वेश्चन है वो भी छूटे हैं, उसके ही ज्यादा कंपोनेंट बढ़ गए, उसके मार्क्स सब क्वेश्चन आ गए तो बात ही खत्म, दांडी गोल होती है। तो उससे अच्छा सब कंपोनेंट्स ही कीजिए, 5 अच्छे कीजिए, बाकी के 4 है वो थोड़े एवरेज पे रखिए यानी। और दोनों का मिक्सचर करना पड़ेगा, both strategies is like extreme and one has to find some middle point, a middle ground into it. ये सब स्टडी करते हुए इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज, ये एक पॉइंट थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या as you know, we are living in the age of information. Terabytes of information keep flooding us on daily basis. बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से आती रहती है, न्यूज़पेपर से। चर्निंग इट बिकम चैलेंज, उसको चर्निंग करना, and after some time exhaust the candidate, exhausting period होता है। आफ्टर सम टाइम हमें ही पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, यानी अंधाधुंध कि क्या चल रहा है पता नहीं चलता, उसके बारे में क्या बात कर रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। तो उससे क्या है कि बेटर फोकस ऑन नॉलेज पार्ट एंड नॉट इंफॉर्मेशन पार्ट। डू नॉट बिकम फैक्चुअल फॉर द सेक ऑफ इट, डू नॉट बिकम फैक्चुअल फॉर द सेक ऑफ इट, कनेक्टेड टू द एनालिसिस। तो यूपीएससी क्या चेक करती है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। सो आंसर इज वेरी स्ट्रेट and simple. The processed information is called as a knowledge. The processed information is called as knowledge, and UPSC checks the knowledge part and not exactly the information part. तो बहुत फैक्चुअल लगता है यूपीएससी, पर वो फैक्ट्स फॉर द सेक ऑफ फैक्ट नहीं डालते हैं। दिस फैक्ट्स आर कनेक्टेड टू सम इंपॉर्टेंट आइडिया, सम इंपॉर्टेंट हैपनिंग, तो दैट कनेक्शन इज पार्ट टाइप ऑफ नॉलेज। वो एक एनालिटिकल पार्ट है नॉलेज। So do not become factual for the sake of it. Connect it with the analysis part. तो factual में क्या होता है कि there you keep highlighting unnecessary things which you don't know also, right? बस ये ऐसा है, ऐसा ऐसा क्यों है, किस लिए है, मालूम नहीं, कोई मटेरियल दिया है, अच्छा बोला है, करो बाहर। तो इस सबका कोई मतलब नहीं होता। उस that is only information, that is not knowledge. Better connect it. पर से facts are printed in the exam. अभी वैसे देखेंगे तो facts तो printed ही एग्जाम में। With the understanding, one has just eliminate wrong and choose the right one. वैसे देखेंगे तो फैक्ट्स तो आते ही है ना एग्जाम में, वो तो प्रिंटेड ही है, आपको सिर्फ एलिमिनेट करना है कि कौन से सही है और कौन से नहीं है। तो इस तरह से ये बात थोड़ा ध्यान में रखिए कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस है। बेटर फोकस ऑन नॉलेज पार्ट व्हाइल स्टडीइंग एंड डू नॉट गेट सो मच एनग्रॉस्ड विद द इंफॉर्मेशन एंड मिस आउट द डिफरेंस, वो नहीं होना चाहिए ना।
ये टेस्ट सीरीज लगानी है कि नहीं, क्या करने का है, वो हर साल क्या इश्यूज होते हैं, टेस्टिंग टाइम्स, तो टेस्ट सीरीज लगाना ही पड़ती है। तो टेस्ट सीरीज लगानी है तो अच्छी बात है, और इसका मतलब यानी डेली बेसिस पे कुछ सॉल्व करना है कि नहीं, तो करना ही है। डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप के इन प्रीलिम टाइप्स, so that you'll get like understanding of how the questions are come and how to tackle the objective type of questions. With the practice 50 questions कुछ भी नहीं लगेंगे, हार्डली 20-25 मिनट्स में भी हो सकते हैं, या उससे भी कम वक्त लगता है, प्रैक्टिस से इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता है। एंड देन टेस्ट सीरीज जो है दैट इज आल्सो लाइक इंपॉर्टेंट। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, वो एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा क्लियर रखिए कि गेटिंग फैमिलियर विद द ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये जो प्रीलिम का फॉर्मेट जो होता है ऑब्जेक्टिव, उससे फैमिलियर होने के लिए टेस्ट सीरीज का मतलब होता है। व्हेन यू कीप सॉल्विंग सच टेस्ट सीरीज यू गेट फैमिलियर विद इट, तो एक्चुअल एग्जाम में कोई ऐसा अलग नहीं लगता है, बिकम वेरी फैमिलियर इजीली। टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन कि बहुत बार है यू डोंट नो एग्जैक्ट आंसर, बट बाय एलिमिनेशन टेक्निक यू कैन रीच एट राइट आंसर। तो वो टेक्निक सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करके ही आती है। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग ऑन गेस वर्क। एक लिमिट के आगे यू डोंट, नोबडी नोज एनीथिंग लाइक एवरीथिंग, तो गेस वर्क करना पड़ता है, इंटेलिजेंट गेस। तो वो गेस वर्क कैसे करता है और गेस राइट आता है कि नहीं हमारे, यानी उसकी जो अंदाजा है दैट शुड बी इटसेल्फ नोन अर्लियर लाइक, सो दैट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम टेस्ट सीरीज। एंड फाइनली टाइमिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि टाइमिंग में पेपर सॉल्व होता है कि नहीं, और उतने वक्त में उतना करते हुए गड़बड़ी तो नहीं होती। सिली मिस्टेक नाम की एक चीज होती है कि नॉर्मली देयर शुड बी ओनली टू थिंग्स, आइदर यू नो और यू डोंट नो, और एक तीसरा टाइप है सिली मिस्टेक, एंड मेनी स्टूडेंट्स सिंपली फ्लंक इन द एग्जाम because though they know the answer they done silly mistakes। तो ये स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को टैकल करना, even that will be better done with the help of a test series। now what not to expect, क्या expect नहीं करना है टेस्ट सीरीज से, one is the same questions। unfortunately it is that some people give the UPSC test series with the help expectation कि वही क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आएंगे। तो या तो उनको यूपीएससी समझा नहीं है, या उन्हें यानी सीरियसनेस नहीं है। यूपीएससी इज वेरी डिफरेंट आइडिया, उनका ये क्वेश्चन अलग ही होता है। आप किसी भी टेस्ट सीरीज के कोई भी टेस्ट छोड़ के ये करके जाओ, वहां पे अलग क्वेश्चन आएंगे सामने। तो सेम क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो, सिमिलर टाइप ऑफ थीम्स वो आएंगी, बट सेम क्वेश्चन विल नॉट कम, सिमिलर पैटर्न में नॉट ऑल्सो कम। इसके इसके इतने क्वेश्चन, उसके उतने क्वेश्चन, उसके उतने क्वेश्चन। नो मेनी टेस्ट सीरीज लाइक एडवर्टाइज दैट वी मेक द टेस्ट सीरीज ऑन द यूपीएससी पैटर्न। पहली बात तो यूपीएससी का पैटर्न ही किसको मालूम है, यूपीएससी के पैटर्न की अलग बात है, तो उसको आप एक्सपेक्ट ही मत कीजिए। टेस्ट सीरीज का ये अलग ही है मतलब। एंड देन नेक्स्ट इज एडिशन टू नॉलेज, इवन डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम टेस्ट सीरीज। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हम टेस्ट सीरीज से पढ़ाई करेंगे, उसका वो आंसर गलत होता है, फिर देन दे गिव द एक्सप्लेनेशन, और उस एक्सप्लेनेशन से हम सीखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तो नहीं, ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक मेथड है लर्निंग का है, क्योंकि टेस्ट सीरीज है रैंडम क्वेश्चंस, उसका कोई लिंक नहीं होता, कोई भी फैक्ट्स का व्यू डाल के उसको एक्सप्रेशन देता है, तो ठीक है, दैट्स लाइक इंटरेस्टिंग टू नो, बट उससे आप पढ़ाई नहीं कर सकते यार, दैट बिकम लाइक अ पीस मील अप्रोच। आप यू डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी, देन वो जो स्टडी होगी वो प्रॉपर नहीं बनेगी है। तो इस तरह से व्हाट यू वांट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टेस्ट सीरीज और व्हाट डोंट टू एक्सपेक्ट, ये क्लियर होगा पॉइंट, तो देन थिंग्स विल बी इजियर। क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेस्ट सीरीज जैसे अभी सोशल हिस्ट्री में मोनोगेमी होती है, प्रभु श्री राम थे मोनोगेमस थे, उसी तरह यानी डू वन टेस्ट सीरीज सीरियसली। कुछ लोगों को ये भी करनी है, वो भी करनी है, वो भी थोड़ी देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक टेस्ट सीरीज फिक्स कीजिए और वही सीरियसली कीजिए, एक पत्नी व्रत की तरह एक टेस्ट सीरीज, बिलीव इन इट, सॉल्व इट सीरियसली, सॉल्व द क्वेश्चंस विद टाइम लिमिट। आप एक टाइम लिमिट रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इन द एग्जाम सिचुएशन। जैसे एग्जाम में इसी नहीं होता है, सम स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी और इन द होम आल्सो हैड एसी, एंड एसी की आदत होती है, तो जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहां पे एसी बीसी नहीं होता है, नॉइज होता है वहां पे अराउंड, नॉइज के अराउंड सॉल्व कीजिए। अनकंफर्टेबल सेटिंग होती है, तो यू शुड हैव अनकंफर्टेबल सेटिंग व्हाइल प्रैक्टिसिंग। आफ्टरनून पेपर्स होते हैं, मेनी पीपल हैड नैपिंग टाइम एट दैट टाइम, वहां खुशी लेता है, तो देन दैट सिएस्टा हैज टू बी अवॉइडेड। तो ये सब भी करना पड़ेगा, इसका टेक्निक का पार्ट है। बी ब्रेव, कंपेयर योर स्कोर विद द अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि मेनी पीपल गिव द टेस्ट सीरीज एंड डोंट कंपेयर ओनली, कंपेयर करने से डरता है, बोलते हैं कि नहीं आई एम यूनिक, आई डजंट नीड अ कंपैरिजन, so that will not do. It's a competitive exam, better you compare with the others, get the score,
get the ranking, understand where you stand in front of them. Next time try to improve the ranking. अगर आप ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप में आते हैं, टॉप 200 में, टॉप 300 में वगैरह, then you can like overall say that you are like in the right direction. अगर आपकी रैंकिंग बहुत कम आ रही है तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, यू हैव टू मेक अ करेक्शंस, तो ही फायदा होगा टेस्ट सीरीज का। तो सिर्फ टेस्ट सीरीज दो और इन्हें रैंकिंग मत पता चलो और कंपेयर मत करो, दैट विल नॉट डू। लाइक 1 month बिफोर एग्जाम स्टॉप कंपैरिजन, स्कोर लेना ही बंद कर दीजिए, 1 मंथ पहले बंद, उसकी जरूरत नहीं है। तो दैट टाइम गेट स्टडी, फिर उसके बाद इन्हें काम डाउन एंड देन जस्ट फेस द एग्जाम। उसके बाद फिर स्कोर कम आया ज्यादा आया 1 month बिफोर, वो दैट डजंट मैटर पर से। लाइक मेक योर ओन नोट्स, तो ये बोलना पड़ता है यार, इतने वैल्यूएबल नोट्स अवेलेबल है, इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतना सब कुछ है कि समटाइम स्टूडेंट्स फाइंड इट, कैंडिडेट्स फाइंड इट लाइक जाने दो ना यार, कहा खुद के बनाना है यार, तो नहीं, दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। मेक योर ओन नोट्स और लेट्स कॉल इट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अभी नोट्स को है ना इंफॉर्मेशन तो भी ठीक है, आप एवरनोट पे बनाइए, आप अंडरलाइन कीजिए, आप पेज की साइड में रखिए लीजिए, कुछ कुछ भी कीजिए, लेट्स कॉल इट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और वो करना पड़ेगा ना। तो ओन नोट्स आर फर्स्ट easy to revise, second easy to update, third easy to remember, and fourth they help in the consolidation of study। कि उनका फायदा क्या होता है कि consolidation of study become easier with their help। तो इस तरह से if own notes are in the hand we feel far more confident than otherwise। ये जो रिवीजन का पॉइंट है वो थोड़ा एम्फोसाइज करना पड़ेगा। रिवीजन बिल्ड अ कमांड ओवर द फैक्ट्स, ओनली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफाइस फॉर प्रीलिम। यस नॉलेज की है, पर रिवीजन करेंगे तो ही फैक्ट्स पे कमांड आती है। 3-4 बार रिवीजन होती है तभी वो फैक्ट्स है परमानेंटली स्टोर होते हैं। तो देन रिवीजन इज क्रूशियल, और अगर आपके खुद के नोट्स से एक सिस्टम है तो ही आपको रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज ऊपर ऊपर से किया है, यहाँ पे थोड़ा है, वहां पे थोड़ा है, कुछ उसका मालूम ही नहीं लिंकेज क्या है, तो देन इट्स ओनली जस्ट लाइक स्टडिंग विदाउट गेटिंग टू द एक्चुअल आउटकम। ये जो करंट अफेयर नाम का चीज है, दैट्स आल्सो $1 million क्वेश्चन, सम में कॉल इट अ $1 billion क्वेश्चन। लाइक करंट अफेयर्स के बारे में मैंने ऐसे देखा है कि सम स्टूडेंट्स लव इट, दे आर इन द लव ऑफ इट लाइक एंड स्पेंड मेजर टाइम ऑन इट। 4-4, 5-5 घंटे पेपर ही पढ़ते हैं, फिर वो कौन से मंथली ये पढ़ते वो पढ़ते रहते हैं, और करंट अफेयर्स का ही करते रहते हैं ऑल द टाइम, एंड कीप टॉकिंग अबाउट सम बिग करंट अफेयर्स, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करो और उसके ऊपर प्रीलिम क्लियर करो। दूसरे अप्रोच वाले तो कौन लोग होते हैं, सम पीपल डिटेस्ट इट एंड ट्राई टू अवॉइड। कुछ लोग अपोजिट होता है, करंट अफेयर से डरते हैं, उससे दूर रहते हैं एंड ट्राई टू अवॉइड। तो अब ये दोनों ही अप्रोच घातक है। इट्स लाइक अ केक एंड क्रीम अप्रोच, लेट्स कॉल इट अ केक एंड क्रीम अप्रोच। व्हाट इज अ केक? केक इज अ बेसिक स्टडीज ऑफ सब्जेक्ट। ये जो बेसिक स्टडी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, तो वो बेसिक जो है दैट इज लाइक अ केक, and cream is a relating it with the current, not pure current। no, many time UPSC do not ask the pure current, the pure current ऐसे नहीं होता है, connected to history, connected to geography, connected to polity, connected to science। तो जो कनेक्शन है वो करना है, तो क्रीम तो चाहिए, केक तो चाहिए, केक के ऊपर क्रीम होता है ना, सिर्फ क्रीम थोड़ी होता है केक पे। तो मेक अ फुल केक, मेक अ फुल केक। सिर्फ क्रीम बनाओगे तो मजा नहीं आता खाने को, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ओनली क्रीम इट डजंट गिव द सक्सेस। ओनली करंट अफेयर्स पे नोबडी कैन क्लियर द एग्जाम, या कोई क्लियर होता है भी 1 साल तो 1 साल फ्लंक होता है, उसके अगले साल वापस क्लियर होता है, उसके अगले साल क्लियर फ्लंक होता है, तो जिग जैग पैटर्न दिखता है। और जो केक बनाते हैं दे हैव स्टेबल पैटर्न लग गया है। ओनली केक इज नॉट एडिक्वेट फॉर सक्सेस, बट और दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं मैं सिर्फ बेसिक ही करूंगा और करंट अफेयर्स तो नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओनली केक इज ऑल्सो नॉट एडिक्वेट फॉर द सक्सेस, तो बेटर हैव बोथ केक एंड क्रीम। अभी एग्जाम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये एक बड़ा ट्रिकी होता है। अभी 50 क्वेश्चन राइट लेने हैं तो 75 to 80 तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है। उससे कम करोगे, स्टॉपिंग एट 55 to 60 इज अ रिस्क ऑफ फेलिंग। सो आई सीन मेनी स्टूडेंट्स वो देखो 55 कर दिया एंड आई एम श्योर 50-52 तो करेक्ट है ही उसमें है, इतना कॉन्फिडेंस होता है। और एक्चुअल जब चेक कर तो बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, जो लगे थे उनको श्योर शॉट आंसर है वो अलग ही था आंसर। तो इस तरह से आपका आपका परफेक्शन है तो वो ठीक है,
कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, पर देन बियॉन्ड वन लिमिट ये वर्कआउट नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपने 55 सॉल्व कर दिया, उसमें से 50 क्वेश्चन आ गए। That is too much of like understanding UPSC and thinking that we know now the pattern of a UPSC. Solving 100 in the opposite way is nothing less than gambling. अगर आप 100 सॉल्व करते हो तो ये गैम्बलिंग की तरह है। How can you solve all 100? Is it like are you some Superman? तो इस तरह से दोनों ही अप्रोच गलत है। फिर मिडिल one has to like take approach. Well, negative marking is a problem. Use it to improve the accuracy and not to avoid batting. कि नेगेटिव प्रॉब्लम में मार्किंग प्रॉब्लम होता है तो इसलिए बहुत कम सॉल्व करने के, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। यूज इट टू इंप्रूव एक्यूरेसी एंड नॉट टू अवॉइड बैटिंग। बैटिंग तो करनी है, बॉल तो खेलना है ना, बॉल अवॉइड करके रन थोड़ी होंगे ना। सो टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड प्रोसीड, कि रिस्क लेनी पड़ती है, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है एंड देन प्रोसीड। लाइक विदाउट रिस्क देयर इज द चांस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम इज लो। लाइक यू हैव टू टेक रिस्क। फाइटिंग एंड गेटिंग डिफीटेड इज बेटर देन नॉट फाइटिंग एंड गेटिंग डिफीटेड। अगर आप रिस्क लेते हो तो फेल होने का चांस है, तो फेल होने का चांस है, इसलिए फाइट ही नहीं करने का। ऐसे अगर एटीट्यूड है तो देन देयर इज नो नीड टू गिव यूपीएससी ओनली। यूपीएससी इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हियर देयर इज ऑलवेज अ हाई चांस ऑफ फेलिंग इज देयर। सो बेटर फाइट ऑन फ्रंट लाइक and they should have front foot instead of back foot. So fighting and getting defeated is better than not fighting and getting defeated. Extreme case we can talk about it like that. तो इस तरह से एक थोड़ा एक पहले ही मालूम होना चाहिए कि कितने मिनिमम क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। दैट मच यू शुड ट्राई हार्ड लाइक। अभी स्टडी करना है तो रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और रिस्क टेकिंग एपेटाइट होनी चाहिए। जैसे रिस्क की बात कर रहे हैं तो रिस्क है, जैसे हर्षद मेहता की ओटीटी में है कि रिस्क है तो इश्क है, तो बस रिस्क है। तो अवॉइड टेकिंग पीपल, टॉकिंग पीपल और हैविंग कंपनी ऑफ पीपल हु आर नेगेटिव टोन। जो नेगेटिव वाले लोग होते हैं उनको अवॉइड करो। यानी फॉर एग्जांपल जो बात करते हैं कि हमारी फर्स्ट फिल्म है, अरे फर्स्ट फिल्म क्या चीज है? फर्स्ट फिल्म, सेकंड फिल्म, थर्ड फिल्म, ये कोई 5 ईयर प्रोग्राम थोड़ी है। या कोई एक सक्सेस का बेंगलो बना रहा है कि जिसके स्टेप्स है, अरे कि फेल्यूर, आई मे स्किप दिस ईयर, व्हाट इज योर प्लान, वो आके पूछते हैं आपको। सो बोगस क्वेश्चन है। इट्स लाइक क्वेश्चन लाइक दिस, आई एम गोइंग टू डू सुसाइड दिस ईयर, व्हाट इज योर प्लान? अरे सुसाइड करा तो करना, मुझे कोई पूछ रहा है। सो दैट्स लाइक ये जो खुद भी नेगेटिव रहना और दूसरों को ये करना है, डिस्टेबलाइज, दैट्स नॉट अ गुड कंपनी लाइक है। दिस ईयर इट इज हर्ड दैट फ्रेशर्स हैव नो चांस टू क्लियर। यार एक और एक बात करते हैं, तो इनको इसे पता चला, यूपीएससी के काम में आके बोला कि हम ऐसे कर रहे हैं, उनको यूपीएससी को पता चलेगा कि कौन फ्रेशर है कौन नहीं है। तो ये सब यानी सुपरफिशियल बातें जो है, दिस ईयर इटसेल्फ इज अ बोगस। जैसे कोविड आया तो ये गलत ईयर है, अभी कौन सा ईयर अच्छा होता है? सब ऐसे ही होता है। आप आपके एफर्ट्स अच्छे होते हैं, इज योर प्रिपरेशन कंप्लीट आके पूछता है। अभी जो यूपीएससी में जो रैंक 1 आता है उसकी भी प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होती। ये कोई अपने एकेडमिक एग्जाम थोड़ी है, 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड की फिक्स बुक है और वो बाहर कर लिया और प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे तो चलती ही रहती है, पूरी थोड़ी होती है ना। तो ये क्वेश्चन ही है ना इंटरेस्टिंग है, इज योर प्रिपरेशन कंप्लीट? तो ये सब जिससे बातें करते हैं, दे आर लाइक बेटर अवॉइड सच पीपल एंड बेटर अवॉइड बिकमिंग नेगेटिव विद द कंपनी ऑफ सच पीपल। बी इन अ कंपनी ऑफ दोज हु से समथिंग लाइक दैट, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है, वो सिकंदर ही यारो कहलाता है। तो such type of people who are ready to take risk, who are fresh, energetic, such people's company one should be, and not in those who are like a negative mood all this time. तो इस तरह से मैंने कुछ अपनी एक पीपीटी बनाई और आपके सामने यानी प्रेजेंट की है। आई थॉट दैट व्हाट आर द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम। बाकी ये जो एक्चुअल बुक्स होता है उसके लिए तो एम्पल डिस्कशन होता है, यानी वो तो है ही है। अभी क्या है कि ये बुक्स के बारे में थोड़ा ये है कि has UPSC any has UPSC given any fixed list of material कि ये मटेरियल पढ़ के जाओ और क्लियर हो जाओ। तो ये बात अगर ऐसा है कि नहीं दिया है तो one should not get too much involved into this discussion on list। स्टैंडर्ड लिस्ट होती है, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के इतने सारे वीडियोस और ये सब होते हैं, तो एक अंदाजा आ जाता है क्या करना पड़ता है, तो बस वो कीजिए। नहीं, after all you are going to understand, analyze, build up, and then you are going to pass and clear the exam like that।
मटेरियल वही होके भी यानी सब क्लियर नहीं होते, या जो क्लियर होते हैं क्या उन्होंने अलग मटेरियल यूज किया होता है? आई डोंट थिंक सो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो too much like discussion on material part, and like once students asked me the SMS पूछा था मुझे कि मैं बिपिन चंद्र पढ़ू क्या, shall I read the बिपिन चंद्र? मैंने उसको आंसर भेजा कि either read बिपिन और read the चंद्र। तो बिपिन पढ़ लिया, चंद्र पढ़ लिया, तो उसको समझा ही नहीं, वो बहुत अलग है। और ये क्या बात है, बिपिन चंद्र का इतिहास थोड़ी हमें, इतिहास है, बिपिन चंद्र का पढ़िए, दूसरा कोई पढ़िए, काम होने से मतलब है ना। आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, है ना। That should be the attitude we should have. So too much discussion on that is irrelevant, that I can say like दिन में 8 घंटा पढ़ाई करेंगे तो काफी है, 8 से 10 घंटा। इट शुड बी क्वालिटी स्टडी। 16 घंटा की और कंसंट्रेशन था ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा कम करो, पर डू इट विथ कंसंट्रेशन। 8 से 10 घंटा काफी होता है, कंसंट्रेशन उतना बनता है, बेस्ट है। 8 से 10 घंटा करोगे तो मोबाइल वगैरह बंद रखोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 8 घंटे में कुछ नहीं होने वाला नहीं है, अर्नब सेफ है, सब कुछ चल रहा है अच्छे से, तो आप बंद रखिए मोबाइल और फिर पढ़ाई कीजिए ना। तो देन ये होती है ना, सामने मोबाइल रखेंगे तो फोमो इशू होता है ना, लाइक मिसिंग आउट होगा कुछ भी, ऐसा लगता है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कुछ मिस आउट नहीं हो रहा है, दुनिया वही है। कुछ बहुत आप जो करने वाले हैं उसे बदलने वाली दुनिया। आप जब तक आयस नहीं बनेंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है, बी श्योर। तो अवॉइड दैट ऑल लाइक। तो इस तरह से 8 से 10 घंटा ठीक से कीजिए, सिंसियरली कीजिए। बी सिंसियर टू योरसेल्फ एंड नॉट टू एनी पर्सन, या नॉट टू एनी गाइड, क्लास। आपको खुद से सिंसियर होना पड़ेगा ना। यू हैव टू डू सिंसियर, यू हैव टू बी इंट्रोस्पेक्टिव अबाउट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। So build on your strength and remove the weaknesses, or at least reduce it. You cannot remove it, but you reduce the weaknesses. तो इस तरह से एक सब प्रोसेस है ना। तो जो क्लियर होते हैं, आर दे लाइक फ्रॉम फर्स्ट डे पोटेंट पीपल हु आर गोइंग टू क्लियर, उनका पोटेंशियल पहले दिन से दिख रहा था। तो ऐसे कोई बात नहीं है, जैसे ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट, बिकम ग्रेट, वैसे जो टॉपर्स होते हैं ऐसे कुछ भी उनके लक्षण नहीं होते हैं ना, बट दे बिल्ड अप इन द प्रोसेस। वो खुद को बिल्डअप करते, शेप करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, वो भी मिस्टेक करते हैं, दे करेक्ट द मिस्टेक्स एंड कीप ऑन द लर्निंग कर्व हाई लाइक, एंड देन दे क्लियर। तो यही बात बहुत क्लियर है। तो आप में भी अगर कोई न्यूनगंड हो, कॉम्प्लेक्स, तो उसको निकाल दीजिए, इट्स ऑल अ प्रोसेस, एंड वन कैन लाइक गो अप ऑन लर्निंग कर्व एंड क्लियर द एग्जाम विद द प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ द प्रीलिम लाइक। तो प्रीलिम कोई बड़ा ही डरावना ये नहीं है, डोंट नीड टू बी मेक इट टू मच ऑफ इट लाइक। If somebody is afraid of prelim so much, then what they're going to do in the mains interview? उसका क्या करने वाले हैं? वो तो और नेक्स्ट स्टेप है। इंटरव्यू में जाके आप वापस आओगे तो क्या करोगे? One has to like work again, one has to like strive again. इस तरह से do not make too much of it. Like yes, one should be sufficiently have like a seriousness of it, but unnecessarily like thinking कि ये कोई बड़ा ही monster जैसा एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट है, इस तरह की आप बातें ये करते रहोगे मन में, तो दैट बिकम प्रॉब्लमेटिक। ऐसे कोई बात नहीं है, स्ट्रेट एग्जाम है, आप प्रिपेयर कीजिए। हर साल क्लियर होने वाले स्टूडेंट्स होता है, तो इसका मतलब कितना भी कहे कि पैटर्न नहीं होता, तो ये हर साल क्लियर होने स्टूडेंट्स है, तो उन्होंने कुछ तो ये प्रिपरेशन ऐसे किया है कि दे आर क्लियरिंग एवरी ईयर। अगर ऐसी बात है तो दैट मीन्स इट्स नॉट लाइक समथिंग गैम्बल, क्योंकि गैम्बल नहीं है। आप उसको ठीक से अप्रोच करते हो, आप उसको ठीक से अप्रोच करते हो, तो ये क्लियर होता है। दैट्स लाइक एटीट्यूड वन शुड have for the prelim. Some more things as I want to say कि अभी क्या है कि ये प्रीलिम करते वक्त एक इशू ऐसे होता है कि how much time one should like dedicated to current affairs daily. तो डेली का मैंने तो बात कर ली कि 5-5 घंटे पेपर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आफ्टर आई एडवाइस दैट 1 घंटा आप पेपर तो पढ़िए, श्योर अच्छे से पढ़िए, रीड इट केयरफुली, रीड इट प्रॉपरली। 1-1.5 घंटा लीजिए पर बस। उसके बाद फिर मैगजीन भी कीजिए तो करना है, मंथली जो होता है अपडेट्स होता है वो भी कीजिए, पर बियॉन्ड वन लिमिट डू नॉट पूरा डे ही करंट अफेयर में डाल दिया मत कीजिए। बट एक करंट अफेयर्स थोड़ा डाइसी कैसा है कि पूरा पेपर करंट अफेयर बेस भी आ सकता है, जैसे 2-3 साल पहले आया था। सो व्हाट विल बी द बेटर अप्रोच टू इट, जो लास्ट मंथ है प्रिपरेशन का, इन दैट यू कैन इंक्रीज द वेटेज गिवन टू द करंट अफेयर्स।
लास्ट मंथ में बढ़ा दीजिए ना वेटेज, और लास्ट के 10 दिन है उसमें तो यू कैन डू फुल करंट अफेयर्स ओनली, 10 दिन तो लास्ट के पूरे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पूरा फैक्चुअल भी कर डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर ही कर दीजिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ टेक्निक। कि विंबलडन किसने जीता, अमेरिकन ओपन किसने जीता, अब ये क्या है कि विंबलडन किसने जीता, अमेरिकन ओपन किसने जीता, ये सिर्फ प्रीलिम के डे तक ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट डे प्रीलिम इट इज इररिलेवेंट, मेंस में वो नहीं आता, इंटरव्यू के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट प्रीलिम के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस लास्ट डे में ऐसे पे कीजिए कि टेम्पररी मेमोरी बस करके जाइए, वहां पे दिख गया नाम, क्लिक, उतना काफी है। तो इस तरह से थोड़ा है ना, स्टार्टिंग से कीजिए, और एंड का 1 मंथ इंक्रीज द वेटेज, लास्ट 10 डेज डेडिकेटेड टू द करंट अफेयर्स में भी, और देन अगर आता ही है तो देन यू कैन टैकल, यूजुअली एबल टू टैकल इट सक्सेसफुली, छोड़ना नहीं है, लाइक करंट अफेयर्स करना नहीं है ऐसी बात नहीं है। और जैसे मैंने डिटेल में बात की आपसे कि बेटर यू प्ले ऑन बेसिक्स, जो बेसिक वाले सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो उनका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वन कैन कॉल इट बेटर वर्ड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी है तो फिर यानी पेपर का पैटर्न कैसे भी हो, कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे आ जाए, ये होने की जरूरत नहीं, नो नीड टू लाइक मूव बिकॉज ऑफ इट, लाइक हिलने की जरूरत नहीं है, स्टिल वन कैन क्लियर। वन ऑफ द स्टूडेंट दिस ईयर, उसका जो सीरीज आती है एबीसीडी, उसका जो सीरीज आया था, तो वो सीरीज में फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही गॉन थ्रू, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसको, 20 क्वेश्चन में से एक भी नहीं। ऑब्वियसली ही हैज बीन सब बिट स्लाइटली डिस्टर्ब्ड कि एक भी नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, नहीं 20 में से नहीं आ रहा तो अभी क्या होगा आगे, तो इंटरेस्टिंगली ही रिमेन काम, तो ठीक है, ऐसा है तो है, और 21 से आगे देन लिंक लगती गई, और आगे ये क्वेश्चन आते गए, नाउ ही इज इन फॉर मेंस, नाउ ही इज फॉर मेंस, तो दैट शोज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी स्टूडेंट्स ने एक्चुअली एग्जाम में से 10-15 एक डिफिकल्ट दिखते हैं, तो वहीं पे पूरा ये कमा बैठे हैं, दे लूज द करेज टू फाइट। तो ऐसे नहीं होता है ना, ये जो आइडिया होती है डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी पेपर, डिफिकल्ट पेपर, ये हमारा एकेडमिक सिचुएशन है, इन द एकेडमिक वर्ल्ड। इन द यूपीएससी डिफिकल्ट पेपर था, इजी पेपर था, इसको एक बियॉन्ड वन लिमिट ज्यादा मतलब ही नहीं है। अगर अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर होगा तो सबको डिफिकल्ट जाएगा, कट ऑफ कम हो जाएगा, इजी होगा सबको इजी जाएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। अल्टीमेटली यू हैव टू कॉम्पीट विद द अदर्स एंड फेयर बेटर देन देम। अगर ये बात है आपको समझ नहीं पड़ती बात, तो आप इससे फिर अब ये नहीं हो जाएंगे कि इजी पेपर था या डिफिकल्ट, ये हमारा एकेडमिक लैंग्वेज है, उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी लाने हैं, यानी इतने परसेंटेज इतने लाए हैं, उसका क्या करना है, दे आर नॉट टेकन फॉर नेक्स्ट लेवल एज इट इज। तो ठीक से जरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्पिरिट क्या है, अप्रोच क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, दैट शुड बी फिक्स्ड प्रॉपरली, एंड देन थिंग्स विल बी क्लियर इजी रहेगा, तो फिर अपने आप चीजें आप इजी होती जाएगी। अगर ये अप्रोच ठीक से नहीं फिक्स किया है और देन यू आर स्टडिंग, तो यू स्टडी, डोंट नो इशू अबाउट इट, ड्यू टू द हार्ड वर्क आप स्टडी करोगे, हार्ड वर्क करोगे, बट नॉट नेसेसरली दैट विल ट्रांसलेट इनटू द सक्सेस इन दैट केस, फिर वो नहीं ट्रांसलेट होगा इन्हें। तो अभी सब होने के बाद भी स्टडी मटेरियल के बारे में अगर बातें होती रहेगी, एनसीईआरटी पढ़े क्या ना पढ़े, ये बुक पढ़े या वो पढ़े, तो मैं कहूंगा कि यानी ठीक है, वी कैन डिस्कस इट आउट ऑफ कोर्स, बट यू कैन फिक्स समथिंग एंड देन बी फॉर्म ऑन इट, स्टडी दैट, एक एक बुक के एक मटेरियल लेके उसके ऊपर काम करो। बहुत ज्यादा बुक्स लेके बैठने में कोई मतलब नहीं है यानी, बुक्स इवन टुडे मैटर, अभी आजकल इंटरनेट से हजारों सोर्सेस मिलते हैं, तो अच्छी बात है यानी, सोर्सेस होना ये अच्छी बुरी बात नहीं है, but doesn't mean that books का मतलब खत्म हो गया है महत्व, they are still crucial, they give the full understanding which this type of material, ready-made material may not give। ये रेडीमेड ऑनलाइन मटेरियल आता है, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, दैट इज नॉट वेरी क्लियर, उसको इतने क्लियरली उन्होंने अगर गलत कुछ एक अंडरस्टैंडिंग किया होगा और वही लेके आप एग्जाम जाते हो और गलत मार्किंग करते हो, यू विल कॉस्ट अ ईयर, उसको ईयर ही कॉस्ट होता है ना। तो इसलिए बेसिक स्टडी डू इट फ्रॉम बुक्स एंड डोंट डू इट फ्रॉम इंटरनेट, उससे आप वैल्यूडेशन कीजिए, उससे आप यानी अगला काम कीजिए एडवांस, और बेसिक तो आप उससे मत कीजिए, दैट इज ऑल्सो बिन श्योर। वन मोर थिंग इज दैट सिंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम प्रीलिम इज, वन शुड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस। जैसे हमने देखा बोला कि हाँ एवरीडे 50 क्वेश्चंस, वन टेस्ट सीरीज रेगुलरली, फॉलो इट थॉरली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट एज अ प्रैक्टिस एक डे वीक में रखिए कि प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने की है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डोंट लुक एट स्कोर, जस्ट प्रैक्टिस कीजिए कि विच प्लैनेट्स मूव ऑपोजिट देन अदर प्लैनेट्स। दो प्लैनेट्स ऐसे है कि
बाकियों से अपोजिट क्लॉकवाइज घूमते रहे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी क्या होगा कि फर्स्ट 1-2 बार आपको नहीं जमेगा, 2 बार गलत गए, तीसरे बार आप बराबर कैच कर लो कौन है वो, है ना। तो इस तरह से है ना प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है ना। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अल्टीमेटली यू शुड एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 50-60,000 क्वेश्चंस, 50,000 60,000 क्वेश्चन तक सब मिलके होना चाहिए। आप लोग ज्यादा नंबर लग रहा है, यू मे थिंक इट्स अ बिग नंबर 50,000 60,000, बट इन रियलिटी इतना बड़ा नंबर नहीं है यार, इतना बड़ा नंबर नहीं है यार, हो जाता है यार। एक बार प्रैक्टिस होने हो गई तो 100 क्वेश्चन भी आधे घंटे में हो जाते हैं, 100 क्वेश्चंस को भी सॉल्व इजीली इन हाफ एन आवर भी काफी होता है ना। फटाफट एक बार लिंक लग गई तो यानी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो यू गेट अ पर्टिकुलर, यू डायरेक्टली गो टू द आंसर, आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंचते हुए इतना वो, एंड इट्स बिकम लाइक रेसिप्रोकल टाइप एक्शन। तो इस तरह से जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दैट विल हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द प्रीलिम अप्रोच, एलिमिनेशन टेक्निक, स्ट्रॉन्ग गेस वर्क, what to solve, what not to solve, and getting the right combination of the questions to be correct. तो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो दैट प्रैक्टिस हैज टू बी रेगुलरली फॉर द प्रीलिम सेक। तो वो कीजिए, दैट हैज टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टडी एंड शुड बी डन, देन इट मस्ट बी डन लाइक दैट। कभी-कभी क्या होता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन पता नहीं चलते क्या लग रहा है, मेनी टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर, वन कैन स्टडी द हिंदी क्वेश्चन आल्सो लाइक। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इतना क्लियर नहीं हो रहा है मीनिंग पढ़ के, तो हिंदी में होता है ना, तो you can use that हिंदी क्वेश्चन many time will clear it out, क्या बोल रहे हैं। तो yes, इस फैसिलिटी you can use it। Sometimes वो इतना easily, इतना इंटरेस्टिंग बोल लेते हैं हिंदी में वर्ड कोई क्वेश्चन में कि that actually hint to the answer। कभी-कभी तो क्वेश्चन में ही इतना इंटरेस्टिंग हिंट देते हैं हिंदी में बातें करते करते कि हिंट को आंसर ही तो आंसर ही देते। कभी-कभी तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे भी हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी बड़ी बात है, 1-2 क्वेश्चन इज आल्सो बिग थिंग। तो ये भी थोड़ी प्रैक्टिस रखी है कि अप्रोच शुड बी मल्टीपल, कि जो स्मार्ट है वो सब जगह देखता है, यानी एक ही जगह देखेगा ऐसे थोड़ी है ना। तो इस तरह से ठीक से यार पूरा प्लान होता है, द प्रीलिम इज अप्रोच प्रॉपरली, देन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, हो सकता है एंड होना ही है, क्योंकि मीन्स और इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अप्रोच, देयर मीन्स एंड इंटरव्यू and then making a post and finally a career is working as an officer. Giving UPSC is not a career as such. It's almost just like a rounds to understand it, whether you are a capable candidate or not. So if you are confident that you are capable, then you will automatically understand. These are just like processes, nothing more than that. Process hoti hai, not the end. Process should be given adequate importance, but of process only, and not of a end as such. So मेरी तरफ से मैंने कुछ तो चीजें बोली है। Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos.